پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہماری پہلی کہانی ہے تاریخ گلی۔ ایک پرسکون محلے میں جہاں بچوں کی ہنسی گلیوں میں گونجتی تھی، دو بہن بھائی آسیہ 9 سالہ اور اس کا چھوٹا بھائی علیم 7 سالہ ہر شام کرکٹ کھیلتے تھے، مگر ان کی امی ہمیشہ خبردار کرتیں، جب سورج ڈوبنے لگے اور اذان کی آواز آئے تو گھر آ جاؤ بچوں، کیونکہ وہ گھڑی ہے جب اندیکھی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے۔ ایک رات تجسس انہیں وہاں لے گیا جہاں انہیں کبھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان نارنگی رنگ میں ڈوبنے لگا۔ قریب کی مسجد سے مغرب کی اذان کی خوبصورت صدا گونجی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگے اور ایک ایک کر کے گلی کے بلب جلنے لگے۔ آسیہ اور علیم کی امی نے کھڑکی سے پکارا، بچوں اندر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امی بس ایک اور اوور، آسیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ علیم نے مسکراتے ہوئے گیند اچھالی۔ انہیں احساس نہ ہوا دیواروں پر پڑتے ان کے سائے اب ان کے اپنے نہیں تھے۔ اذان ختم ہوئی، گلی میں خاموشی چھا گئی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اسٹریٹ لائٹس ٹمٹمانے لگیں۔ آسیہ نے شاٹ کھیلا اور گیند ویران گھر کے ساتھ والی تنگ گلی میں جا گری، ایک ایسی گلی جس میں سورج ڈوبنے کے بعد کوئی نہیں جاتا تھا۔ علیم جلدی جا کے گیند لے آؤ۔ علیم نے قدم بڑھایا اور اچانک تمام بلب بجھ گئے، اندھیرا چھا گیا، صرف وہ گلی ہلکی سرخ روشنی میں نہا رہی تھی، جیسے کسی بجھتی آگ کی چنگاری۔ علیم ہمارے ساتھ کھیلنے آؤ۔ علیم کے قدم رک گئے۔ آسیہ تم نے سنا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ کیا سنا؟ آسیہ نے جواب دیا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر گلی کے کونے سے کچھ رینگتا ہوا نمودار ہوا، لمبا، پتلا، دھوئیں کی طرح ہلتا ہوا۔ وہ دھواں شکلوں میں بدلنے لگا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، چہرے آدھے دکھائی دے رہے تھے اور وہ سرگوشی میں بول رہے تھے، آسیہ، علیم، ہمارے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ آسیہ نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بھاگی، مگر گلی جیسے لمبی ہوتی جا رہی تھی، جتنا دوڑتے گلی کا موڑ اتنا ہی دور ہوتا گیا۔ آسیہ مجھے گھر نظر نہیں آ رہا، علیم چلایا۔ پھر وہ سرگوشیاں تیز ہو گئیں، ہنسی، چہک، گونج ہر طرف سے گھومتی ہوئی۔ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، اب تم رات کے بھو گئے ہو ہمیشہ کے لیے۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے امی کی بات یاد آئی، جب خوف محسوس ہو اللہ کو پکارو۔ وہ رک گئی، آنکھیں بند کیں اور زور سے پکارا، اللہ اکبر۔ پھر بلند آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی آواز گلی میں گونج اٹھی جیسے بجلی اندھیرے کو چیر گئی ہو۔ ایک لمحے میں وہ سرخ روشنی سفید نور میں بدل گئی، سائے چیخنے لگی اور دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئے۔ گلی پھر سے روشن ہو گئی، لائٹس اب پرسکون، صاف اور چمکدار تھیں۔ آسیہ اور علیم اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، ان کی امی دوڑ کر باہر آئیں، آنکھوں میں آنسو۔ میرے بچوں، مغرب کے بعد باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہ دونوں امی سے لپٹ گئے، ہم معافی چاہتے ہیں امی۔ اس رات مغرب کی نماز کے بعد امی نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو جائے تو اپنے بچوں کو قریب رکھو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد آسیہ اور علیم کبھی مغرب کے بعد اکیلے باہر نہیں نکلے۔ اذان سنتے ہی وہ دوڑ کر گھر آتے، رات کے خوف سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی حفاظت کے پیار میں۔ بچوں، ہمیشہ یاد رکھو، جب سورج غروب ہو اپنے پیاروں کو گھر بلا لو، بسم اللہ کہو اور مغرب کی نماز پڑھو، کیونکہ ایمان اور اطاعت ہر اندھیرے کے مقابلے میں سب سے روشن نور ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی ہے جنوں کی توبہ۔
सरगोशियां करते जंगल के बीचों बीच, जहां दरख्त रात को गुनगुनाते थे और चांदनी जमीन को छूने से घबराती थी, दो शरारती जिन भाई रहते थे, आहिम और कासिब। उन्हें एक ही खेल पसंद था, इंसानों को डराना। आज रात उनका नया खेल शुरू होने वाला है। हर चांद की पूरी रात ये दोनों जिन शक्लें बदल लेते। कभी आग जैसी आंखों वाली स्याह बिल्ली, कभी झुकड़ जो खिड़कियां जोर से बंद कर देता, कभी दीवारों पर नाचता हुआ साया जो हंसता था। लेकिन आज रात एक नया मंसूबा बना। आहिम मुस्कुराया, उसका धुआं सा बदन लहरा रहा था। आओ आज उन इंसानों को डराएं जो पुरानी मस्जिद में रात गए नमाज पढ़ रहे हैं। कासिब हंसा, उसकी आवाज बादलों की गर्ज जैसी थी। हाँ, इंसान हमेशा उससे डरते हैं जो उन्हें नजर नहीं आता। वो रात के आसमान पर उड़ते गए, धुएं में बदलते हुए, यहाँ तक कि वो गांव की चमकती हुई मस्जिद तक जा पहुँचे। मस्जिद चांदनी में खामोश खड़ी थी। अंदर एक बूढ़ा इमाम तन्हा नमाज में मसरूफ था। जिन आहिस्ता आहिस्ता सुतूनों के पीछे छुप गए, हवा में सरगोशियां करने लगे। कासिब, तंजिया, क्या लगता है ये हमें देखकर बेहोश हो जाएगा? आहिम हंसते हुए, चलो पता करते हैं। वो मस्जिद में चीखने लगे, रोशनियों को झलमलाया, चिराग बुझा दिए, मगर इमाम जरा न घबराया, बल्कि उसने पुरसुकून लहजे में पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। जिन साकित हो गए। अचानक इमाम की जाए नमाज से एक रोशनी की लहर निकली। दोनों जिन पीछे लढ़क गए, उनके धुएं जैसे जिस्म कांपने लगे। इमाम, ऐ नादीदा मखलूक, तुम उन्हें क्यों डराते हो जिन्हें अल्लाह ने रहमत से पैदा किया? क्यों खौफ फैलाते हो जब तुम भी अमन के कायल हो सकते हो? आहिम कांपती मगर जिद्दी आवाज में, हम तो सिर्फ खेलते हैं, इंसान कमजोर हैं, थोड़ा सा डरा दें तो क्या? इमाम नरमी मगर वक़ार से, तुम्हें शरारत के लिए नहीं पैदा किया गया। जिन भी दिल रखते हैं, रूह रखते हैं, और नेकी और बदी में तुम्हें भी इख्तियार दिया गया है। अभी भी लौट आओ, तौबा करो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। ये अल्फाज उनके चारों तरफ नर्म रोशनी बनकर फैल गए। कासिब की आंखों की चमक मधम हो गई। रहमत हमारे लिए भी। आहिम ने नजरें झुका लीं। सदियों में पहली बार शर्मिंदगी ने उनके दिलों को छुआ। इमाम, हाँ, अल्लाह हर उस दिल को माफ़ करता है जो सच्ची तौबा करे, लेकिन तकब्बुर दिल को अंधा कर देता है। जब तुम मग़फ़िरत मांगोगे, तुम्हारा अंधेरा रोशनी बन जाएगा। सुबह का वक्त करीब आया। जिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पहली बार वो धुएं में गायब नहीं हुए। वो इमाम के साथ झुक गए और आहिस्ता आहिस्ता बोले, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम खेल और गुरूर में भटक गए थे। मस्जिद में सुनहरी रोशनी फैल गई और उसी लम्हे उनके स्याह बदन चमकने लगे, चांदी की रोशन धुंध में बदल गए। इमाम मुस्कुराते हुए, जाओ ए आतिशी मखलूक के बच्चों, अब जहाँ कभी खौफ फैलाते थे वहाँ अमन फैलाओ। तब से जब भी कोई मुसाफिर सरगोशियों के जंगल से गुजरता, वो दो नर्म रोशनियां देखता जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखाती थीं। किसी को इल्म न था कि वो आहिम और कासिब हैं, वही जो कभी डर के सौदागर थे, अब हिदायत के मुहाफिज बन गए। वो अब चीखते नहीं बल्कि हवा के साथ दुआएं पढ़ते हैं ताकि दूसरे भी रहमत के साए में लौट आएं। प्यारे बच्चों, चाहे हम कितनी ही गलतियां करें, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद होना, क्योंकि उसकी मग़फ़िरत हर गुनाह से बड़ी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। याद रखो बच्चों, जब हम तौबा करते हैं और नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हमारे अंधेरे भी अल्लाह की रहमत के नूर से जगमगा उठते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है लैलतुल कदर की तैयारी।
درختوں کے سروں پر بسا ہوا جادوئی گاؤں نولوڈ، جہاں درختی گھر ستاروں کی طرح چمکتے تھے اور بولنے والے جانور انسانوں کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ایک رات آئی جو سب راتوں سے زیادہ روشن تھی، عبادت کی رات، شب قدر۔ بادلوں کے اوپر گاؤں والے اپنی عظیم مسجدی درخت چوک کو عبادت کے لیے سجا رہے تھے، اور بچوں کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ جادوئی لالٹینیں لٹکائیں جو صرف خالص نیت والے دلوں سے روشن ہوتیں۔ 10 سالہ عروسا اور اس کی 8 سالہ بہن انسیا، جو اپنی شرارت اور تخیل کے لیے مشہور تھیں، مددگاروں میں شامل ہوئیں۔ پہرے دار گلہریاں ہدایات دے رہی تھیں، جبکہ الو اپنے پنجوں میں لالٹینیں اٹھائے بنے ہوئے پتوں کے گنبد کے گرد اڑ رہے تھے۔ میں سب سے بڑی لالٹین جلاؤں گی، سب جان لیں گے کہ یہ عروسا نے بنائی ہے۔ انسیا بس مسکرا دی اور خاموشی سے اپنی چھوٹی لالٹین نماز کے حصے کے قریب باندھ دی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ایک نرم ہمہمہ شاخوں میں بھر گیا۔ لالٹینوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ صرف خالص دل ہی روشنی لاتے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ عروسا ہنسی، گھبرا کر بولی، یہ تو بس ہوا ہے۔ مگر جب وہ اپنی سجاوٹ پر فخر کرتی، اس کی لالٹین مدھم پڑ جاتی۔ جبکہ انسیا آہستہ آہستہ دعا مانگتی، اے اللہ میری چھوٹی سی کوشش قبول فرما، اور اس کی لالٹین سنہری روشنی سے جھلملانے لگتی۔ مگر جیسے ہی عبادت شروع ہونے والی تھی، آسمان گرج اٹھا۔ ایک زوردار طوفان نور وڈ پر چھا گیا، پل ہلنے لگے، لالٹینیں رسیوں سے ٹوٹ کر جنگل میں بکھر گئیں۔ او نہیں، میری لالٹینیں، میں نے کتنی محنت کی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بارش میں بھاگ نکلی، ہوا گرجنے لگی، ایک شاخ ٹوٹی اور وہ پھسل کر دھندلی وادی کے اوپر لٹک گئی۔ انسیا اور پہرے دار الو فوراً دوڑ آئے۔ انسیا نے بلند آواز میں دعا کی، اے اللہ میری بہن کی حفاظت فرما، اور اپنا ننھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کانپتی انگلیوں سے عروسا نے ہاتھ پکڑا اور دونوں واپس اوپر چڑھائیں، بھیگی ہوئی، تھکی ہوئی مگر محفوظ۔ جب طوفان تھما تو سارا مسجدی درخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں والے خاموش ہو گئے، تمام لالٹینیں گم ہو چکی تھیں۔ انسیا شرمندگی سے بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ ساری رات میں چاہتی رہی کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، نہ کہ اللہ۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی لالٹین اٹھائی اور اسے چپکے سے نماز کی شاخ پر باندھ دیا، پھر دھیرے سے کہا، یا اللہ میں بس چاہتی ہوں کہ تو اسے قبول کر لے۔ اور اسی لمحہ اس لالٹین کے اندر روشنی کی ایک کرن پھوٹی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مسجدی درخت چوک سنہری روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ گاؤں والے دم بخود رہ گئے۔ لالٹینیں جنگل سے واپس اڑتی آئیں، پہلے سے کہیں زیادہ روشن، اور مسجد کے گنبد کے گرد چکر لگانے لگیں۔ آسمان سے نوری بارش برسنے لگی، جیسے آسمان بھی عبادت میں شامل ہو گیا ہو۔ بزرگ کچھوا خوشی سے کہا، سبحان اللہ، یہ روشنی واپس آئی ہے، اخلاص کی وجہ سے۔ عروسا اور انسیا اس رات شانہ بشانہ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی رہیں، دلوں میں سکون، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر شکر۔ لالٹینوں کی سرگوشیاں پھر سنائی دینے لگیں، اخلاص روشنی لاتا ہے، اخلاص روشنی لاتا ہے۔ اس بابرکت شب قدر میں عروسا نے جان لیا کہ اصل روشنی اس سے نہیں آتی کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ اور یوں نور وڈ کا گاؤں ان لالٹینوں کے نیچے سو گیا جو ہمیشہ سرگوشی کرتی رہیں، یاد دہانی کے طور پر کہ اخلاص ہی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی ہے مچھلی کی سرگوشی۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان جیسے کوئی چھپا ہوا خزانہ ہو، وہاں ایک جادوئی گاؤں تھا جسے حیات آباد کہا جاتا تھا۔ یہاں نیلی ندی کرسٹل کی طرح چمکتی تھی، پھول چاندنی میں جگنوؤں کی طرح دمکتے تھے، اور ہر ہوا کے جھونکے میں چنبیلی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ چاندی کی ندی جو حیات آباد کی جان تھی، مدھم پڑنے لگی۔ 10 سالہ عاصم اور اس کی 8 سالہ بہن عالیہ پل پر کھڑے پانی کو دیکھ رہے تھے، جو کبھی چمکتا تھا اب بدھ سا گیا تھا۔ عاصم بولا، مچھلیاں کہاں چلی گئیں؟
आलिया ने आहिस्ता कहा, यूं लगता है जैसे नदी चमकना भूल गई हो। इसी रात जब चांद आसमान पर नूर बिखेरने लगा, नदी में हल्की सी चांदी जैसी रोशनी झिलमिलाई और अचानक एक नन्ही सी बोलने वाली मछली नमूदार हुई। उसने अपनी क्रिस्टल आंखें झिपकाईं और बोली, हयात आबाद के बच्चों, तुम्हारा गांव इंसाफ और मेहरबानी भूल गया है, इसीलिए नदी ने चमकना छोड़ दिया है। अगली सुबह सूरज के नीचे खूबसूरत मस्जिद के करीब फूलों से सजे चौक में गांव वाले जमा हुए। गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, जो कोई चांदी की नदी को दोबारा चमका दे, उसे हयात आबाद का मुहाफिज कहा जाएगा। आसिम की आंखों में चमक आ गई। हम इसे ठीक करेंगे आलिया, मैं पानी को पहले अपने बाग तक ले आऊंगा, हम वहीं तजुर्बा करेंगे। आलिया मुस्कुराई, शायद दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, मगर आसिम ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। वो अपनी ही धुन में मगन था। आसिम ने एक लकड़ी का बेलचा लिया और जोश से खोदने लगा। फूलों के बीच छोटी नहरें बनाता गया जो सीधे उनके बाग की तरफ जाती थीं। पानी बहा, उसके ट्यूलिप्स नाचने लगे, गुलाबों ने लाल रोशनी फैलाई। इधर आलिया नंगे पांव वादी के उस पार चल पड़ी, जहां नदी नहीं पहुंचती थी, जहां कमजोर फूल झुक गए थे और गरीब बच्चे दूर से बाल्टियां भर के लाते थे। वो चुपचाप वहां पानी पहुंचाती गई। मगर जैसे जैसे रात हुई, नदी की रोशनी बुझने लगी और हवा में एक सरगोशी गूंजी। जो दिल ज्यादा अपने लिए संभाज रखता है, वो दूसरों का हिस्सा कम कर देता है। रात के वक्त जब चांदनी फैल चुकी थी, वही चमकती मछली वापस आई, मगर अब इसकी रोशनी मध्यम थी। इसने कमजोर आवाज में कहा, मेहरबानी वो याद दिलाती है जो लालच भुला देता है। जब तुम दोगे, नदी फिर जिएगी। और ये कहकर वो अंधेरी लहरों में गायब हो गई। आलिया ने सांस रोका और आसिम चुप रहा। दिल में नदामत के बादल छा गए। सुबह हुई तो धुंध ने गांव को ढांप रखा था। आसिम नदी की तरफ दौड़ा, मगर उसकी बनाई नहरें खुश्क थीं। उसने देखा आलिया दूर खड़ी नदी के आखिरी कतरे गरीबों के बागात की तरफ मोड़ रही थी। आसिम की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ गया, कीचड़ में जूते छपाकते हुए और बहन के साथ मिलकर बंद नालियां साफ करने लगा। पानी बहने लगा, हर घर, हर बाग, हर प्यासी जड़ तक। और फिर एक मौजज़ा हुआ। चांदी की नदी रोशनी से दहक उठी। पानी चांदनी की तरह चमकने लगा। फूल कीमती जवाहरात बन गए और हयाताबाद खुशी के नारों से गूंज उठा। गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, आज से आसिम और आलिया हयाताबाद के मुहाफिज कहलाएंगे। इमाम साहब ने मुस्कुराकर तलावत की, बेशक अल्लाह इंसाफ, एहसान और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है। आसिम ने बहन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रही थी आलिया, नदी सबसे ज्यादा तब चमकती है जब सब इससे प्यास बुझाएं। आलिया ने मुस्कुराकर फूल का पत्ता नदी में फेंका और वो चमक उठा। एक चांदी की मछली छलांग लगाकर उठी और बच्चों पर मुस्कुराकर वापस लहरों में गायब हो गई। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला इंसाफ, मेहरबानी और दूसरों की मदद को पसंद करता है, चाहे वो हमारे अपने घर वाले हों, पड़ोसी हों या ज़रूरतमंद। जब हम बांटते हैं, अल्लाह हमारे दिलों और ज़िंदगियों को रोशनी और सुकून से भर देता है, बिल्कुल हयाताबाद की चांदी की नदी की तरह। बच्चों, याद रखो, इंसाफ ज़िंदगी को मुतवाज़न रखता है, मेहरबानी दिलों को ज़िंदा रखती है और सखावत अल्लाह का नूर फैलाती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है जिक्र की ताकत। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां बादल धाड़ते और बिजली छतों पर नाचती थी, एक निडर लड़का रहता था जिसका नाम था अरहम, या यूं कहिए वो कभी निडर हुआ करता था। एक तूफानी शाम जब अरहम पहाड़ी पर अपनी लाल पतंग उड़ा रहा था, अचानक आसमान से चमकती हुई बिजली कूदी। उसकी पतंग का धागा टूट गया और वो बादलों में गायब हो गई। उस दिन के बाद हर कड़कती हुई गरज उसके दिल को ऐसे धड़काती जैसे जंग के ढोल बज रहे हों। अरहम ने बाहर जाना छोड़ दिया। जब हवा चलती तो वो कंबल में छुप जाता, हत्ता कि उसकी बिल्ली मैसू भी जानती थी कि तूफान की आवाज मतलब है छुपने का वक्त।
एक रोशन दिन नानी जान हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आईं। उन्होंने देखा कि अरहम आसमान को घबराहट से देख रहा है, तो बोली, मेरा बहादुर शेर आज तो डरे हुए बिल्ले की तरह लग रहा है। अरहम ने आह भरी, नानी, बिजली बहुत जोर से गरजती है, लगता है जैसे गुस्से में है। नानी मुस्कुराई, तो अपने दिल को बिजली से ऊंची आवाज में सरगोशी करना सिखाओ। अल्लाह को याद करो मेरे बच्चे, कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर देखना कैसे सुकून तेरे दिल में उतर आएगा। उसी रात बादल फिर जमा हो गए। बिजली ने अरहम की खिड़की को चमका दिया। मैसू ने स की आवाज निकाली, कमरा लरज उठा। अरहम जम गया। फिर उसने मुट्ठी भींची, एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर लफ्ज उसके गिर्द नरम सुनहरी रोशनी बन के चमकने लगा। गरज फिर गूंजी, मगर इस बार वो नहीं छुपा। वो खड़ा हो गया, टॉर्च को तलवार की तरह पकड़े। खिड़की धड़ाम से खुल गई। बारिश अंदर आ गिरी। बाहर उसकी लाल पतंग एक दरख्त में फंसी हुई थी। बिजली के चमकने में वो चमक रही थी। अरहम चौंका, ये तो मेरी पतंग है, और सोचे बिना बाहर दौड़ पड़ा। हवा चीख रही थी, बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, मगर वो मुसलसल जिक्र करता जा रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन फिसलन भरी थी, मगर उसके कदम मजबूत होते जा रहे थे। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक और बिजली चमकी और पूरा पहाड़ रोशन हो गया। उसने पतंग का धागा पकड़ा और अचानक तूफान थम गया। बादल हट गए, गरज हल्की पड़ गई, जैसे पहाड़ों के पीछे कोई नरम सा ढोल बज रहा हो। अरहम रुक गया। दुनिया पुरसुकून लग रही थी। वो मुस्कुराया, पतंग हाथ में, और वो आयत दोहराई जो नानी ने सिखाई थी, यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब वो घर लौटा, नानी ने उसे गले से लगा लिया। तो मेरा बहादुर शेर दोबारा गरजने लगा। अरहम हंसा, नहीं नानी, इस बार तो ये जिक्र की सरगोशी थी। तो प्यारे बच्चों, जब खौफ, गुस्सा या उदासी दिल में बस जाए तो अल्लाह ताला को याद करो। जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रोशनी है, हौसला है, और वो सुकून है जो हर अंदरूनी तूफान को ख़त्म कर देता है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी आखिरी कहानी है शहजादा और कुम्हार। एक सुनहरी धुन में लिपटी सल्तनत में एक कम उम्र शहजादा महल की बालकोनी पर खड़ा नीचे दुनिया को देख रहा था। यकीन किए कि कोई भी उसके मकाम तक नहीं पहुंच सकता, मगर उस रात आसमान उसे आजिज़ी का सबक सिखाने वाला था। शहजादा ज़ैद अपने लोगों का महबूब था, होशियार, बहादुर और नरम दिल। मगर जैसे जैसे महल में उसकी तारीफ़ों के नारे गूंजते गए, वैसे वैसी उसके दिल में गुरूर का पौधा परवान चढ़ने लगा। वो बाज़ारों से गर्दन ऊंची किए गुजरता, न गरीबों को सलाम करता, न खादिमों का शुक्रिया अदा करता। एक रोज़ एक बूढ़ा किसान आजिज़ी से बोला, अस्सलामु अलैकुम मेरे शहजादे। तो ज़ैद ने तन से कहा, अपने कीचड़ भरे हाथ मुझसे दूर रखो, शाही खून मिट्टी के लिए नहीं होता। उसके दाना वालिद बादशाह रहमान ने खबरदार किया, मेरे बेटे, आजिज़ी के बगैर ताज एक दिन गिर जाएगा। ज़ैद मुस्कुराकर बोला, अब्बा जान, जो ऊंचाई के लिए पैदा हो वो कैसे गिर सकता है। उसी रात ज़ैद अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार जंगल की राहों पर निकला। बिजली चमकी, आसमान गरजा, हवाएं गरजने लगीं। अचानक घोड़ा भिपरा, रास्ता दो हिस्सों में बट गया। एक तेज रोशनी चमकी, घोड़ा चंधिया गया और शहजादे को अंधेरे जंगल में जा गिराया। जब सुबह आंख खुली तो शहजादा जख्मी, अकेला, पुरताज से महरूम था। कपड़े फटे हुए, दरख्तों में उल्लुओं की आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर भेड़ियों की हू। ज़ैद ने मदद के लिए पुकारा, तब उसे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी जिसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। अंदर एक बूढ़ा कुम्हार बैठा था, झुरीदार हाथों से चाक पर मिट्टी घुमा रहा था। उसने नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम नौजवान मुसाफिर। ज़ैद सीधा होकर बोला, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। कुम्हार मुस्कुराया, तो बैठ जा, खाना खा, आराम कर,
कल तुम मेरे साथ बर्तन बनाने में मदद करेगा, यही तेरी मेहमान नवाजी का शुक्र होगा। अगली सुबह जैद ने मिट्टी गूंदने की कोशिश की, मगर वो फिसल गई, फैल गई, टूट गई। कुम्हार बोला, अपने हाथ धीरे चला, दिल को पुरसुकून कर, मिट्टी उस दिल की सुनती है जो आजिज हो। दिन गुजरते गए, जैद सीखता रहा। आखिर एक शाम उसने अपनी पहली मुकम्मल सुराही बनाई। दिल नरम पड़ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मगर किस्मत ने पलटा खाया। बाहर घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दी। शाही सिपाही झोंपड़ी में घुस आए। ये रहा गुमशुदा शहजादा, वो चिल्लाए। कुम्हार के हाथ से चाक गिर गया। जैद ने नजरें झुका लीं। सिपाही झुककर सलाम करने लगे। जैद ने आहिस्ता से कुम्हार से कहा, तुम जानते थे मैं कौन हूँ, है ना? कुम्हार मुस्कुराया, जानता था मेरे शहजादे, मगर यहाँ मैं चाहता था तुम देखो कि बादशाह हो या कुम्हार, सब एक ही मिट्टी से बने हैं। महल वापस पहुंचकर जैद ने तख्त के सामने वही बर्तन रखा जो उसने बनाया था, ताज के बराबर। फिर सबके सामने बोला, आज से ये बर्तन मेरे ताज के साथ रहेगा, ताकि मुझे याद रहे कि गुरूर मिट्टी से भी जल्द टूट जाता है और सिर्फ आजिज़ी ही रूह को कायम रखती है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, अब तुम ताज के सच्चे हकदार बन गए हो मेरे बेटे। और उस दिन के बाद शहजादा जैद ने अपने लोगों के दरमियान आजिज़ी से हुकूमत की, गरीबों की खिदमत की, खुद उनके साथ बैठकर मिट्टी गूंदी, और वो सल्तनत जो कभी गुरूर में डूबी थी, मोहब्बत और बरकत से फिर से जगमगा उठी। मेरे प्यारे बच्चों, गुरूर दिलों को भारी कर देता है, मगर आजिज़ी रूह को बुलंद कर देती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल न होगा। जमीन पर नरमी से चलो, बात मोहब्बत से करो, और याद रखो अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं। गरूर दिल को अंधा कर देता है, मगर आजिज़ी जन्नत के दरवाजे खोल देती है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।